Welcome students, welcome to the e-learning session of economics. Today we are going to start Indian economics. Okay, we have already covered some portion of your macroeconomics. So today we will start with Indian economics. Okay, in this we will start with the very first chapter, that is Indian economy on the eve of independence. Indian economy on the eve of independence. Okay, in this chapter we will cover few topics today in this session. The first one is colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. Okay. The next one is features of Indian economy on the eve of independence. And the last one is what was the state of agricultural sector, what was the state of industrial sector on the eve of independence. Okay, on the eve of independence. So these are the topics that we will cover in this session. Okay, students. So let's begin with the first topic for the day, that is colonial exploitation under the British rule. British rule के बारे में you have already studied in history, isn't it? You have already studied. You must have studied. I don't know what was there in your syllabus, but as far as I'm concerned, we already have a brief idea about the kind of India's you can say state of India at the time of British rule. Okay, हम लोगों को एक general idea है. We have this idea that during the British period, when the British were ruling India, what was the state of India at that time? है ना? तो एक brief knowledge सबको है. But as far as the economic structure of India is concerned, okay, economic position or condition of India is concerned, we'll study in this chapter. ठीक है, here we will not study about what they did in India. ठीक है, वो लोग इंडिया में क्या करते थे इस बारे में नहीं बात करना है. हमको सिर्फ और सिर्फ we will focus on the state of economy. ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी at the time of British rule, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. And by the time British people left India, जब वो लोग इंडिया से गए, when we got our independence, so independence जब हमें मिली तो उस समय at that time what was our condition economically, how was India, okay, as an economy. So let's begin with the first topic, that is colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. British rule में colonial exploitation, exploit करना मतलब destroy करना, to take advantage of something, है ना. So exploitation कैसे किया गया? Colonial exploitation means what? आपको अगर पता होगा, अगर आपको हिस्ट्री के थ्रू नॉलेज होगी ब्रिटिश रूल की इंडिया में, देन यू मस्ट हैव नोन कि ब्रिटिश लोग का जो रूल करने का स्ट्रक्चर है वो क्या था. दे यूज्ड टू मेक कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, कॉलोनीज मतलब अपने अलग अलग कंट्रीज में जाके ना वो लोग अपना ब्रिटिश एम्पायर फैला रहे थे. दे वर स्प्रेडिंग ब्रिटिश एम्पायर एंड दे वर मेकिंग prosperous countries, small prosperous countries which were developing countries, growing countries, promising countries, ऐसे countries को ढूंढ के उन लोग अपनी colonies बना रहे थे और उनको exploit करते थे अपने purpose के लिए, है ना. They were using the economy of that country for their own growth and development. Britain के growth and development के लिए उन लोग उस economy को use करते थे. तो इंडिया was one of their colonies. उनके बहुत सारे colonies थी, उसमें इंडिया भी एक colony उन्होंने बनाई थी. Okay, India was a colony of the British. They came here to trade. उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पे एंट्री ली थी to have some trade relations with India, and slowly and gradually they captured India and made India its colony. तो इंडिया को अपने colony बना के उन्होंने exploit करना शुरू किया. And by the time they left India, it was totally exploited, brutally exploited by the Britishers. ठीक है. We are focusing only on the economic aspect of the exploitation. So let's see how economically India was shattered under the British rule. The first thing is colonial exploitation of the agriculture. Agriculture जो इंडिया का था, okay, India's agriculture was very very good, but it was totally exploited under the British rule. British rule जो आया उसमें इंडिया के एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान पहुंचा. They made land revenue very important, isn't it? They brought the system of land revenue. They
स्टार्टेड सिस्टम ऑफ जमींदारी सिस्टम, है ना, लैंडलॉर्ड्स के सिस्टम को उन्होंने स्टार्ट किया था। जो फार्मर्स थे, जो टिलर्स थे, टिलर्स मतलब जो कल्टीवेशन का काम करते, जो मेहनत करते, द पर्सन हु इज एक्चुअली डूइंग द वर्क, he or she was not getting the return, while the rich people were made the landlords. Okay, जमींदारी सिस्टम was started और उन लोग एक्सप्लॉइट करते थे पुअर फार्मर्स को, पुअर टिलर्स को, ठीक है। so this system was developed and also agriculture was exploited in the sense that no facilities were given. Productivity of agricultural sector was very low. कोई भी तरह की बेनिफिट्स नहीं दी जा रही थी एग्रीकल्चरल सेक्टर को, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था इस एरिया में, इस सेक्टर में। ओके, दे वर ओनली देयर टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द पुअर पीपल। तो पुअर जो फार्मर्स थे, जो टिलर्स थे, उनकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही लो हो रही थी और उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था टू कलेक्ट हाई लैंड रेवेन्यूज फ्रॉम देम। ओके, एंड दिस वाज done by whom? By the British people. The next thing is the colonial exploitation of the industrial sector. आपको पहले पता है कि इंडिया was very good at foreign relations. इंडिया का हमेशा से foreign international scenario में बहुत अच्छा you can say relations रहा है ना बाकी countries के साथ में। India was always at the center of attention because of its unique products, है ना। इंडिया का जो trade relations था वो ब्रिटिश रूल के पहले की बात है। इट वॉज वेरी फ्लरिशिंग, है ना। इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत फ्लरिश कर रहा था, यहाँ के प्रोडक्ट्स की फॉरेन मार्केट में बहुत डिमांड थी। इट वॉज वेरी हाई इन डिमांड, बट द ब्रिटिश रूल दे एक्सप्लॉइटेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को खराब किया, इंडिया की यहाँ की इंडस्ट्री को ब्रेक किया। यहाँ के जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी और अदर इंडस्ट्री, सबको इसमें ब्रिटिश रूल ने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। दे एक्सप्लॉइटेड द इंडस्ट्री मीन्स व्हाट, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी जो भी फैसिलिटीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज या जो भी ग्रोथ की डेवलपमेंट की जरूरत थी वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। जो सपोर्ट की जरूरत थी, टैक्स एंड सब्सिडीज रिलेटेड, वो सपोर्ट भी नहीं मिलता था। ओके, एंड डिफरेंशियल टैक्स पॉलिसीज फॉलो करके उनको नुकसान पहुंचाया गया, है ना। तो इंडिया की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, यहाँ के जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो यहाँ के कैसे यूनिक फीचर था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ओके, एंड वन मोर थिंग वाज डन, दैट इज कि यहाँ पे जो टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया गया, उस टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से भी इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचा। यहाँ इंडिया में क्या होता था कि इंडिया वाज रिड्यूस्ड। Okay, India was industrially it was reduced to the importers of heavy goods industries. यहाँ पे heavy goods industries, heavy goods, ठीक है, heavy goods industries यहाँ पे थी ही नहीं। There was no such industries in India. तो heavy industries यहाँ पे थी नहीं और यहाँ पे जो industries थी उनको destroy किया गया। और यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ का जो प्रोडक्ट था वो फॉरेन में न बिक पाए, इसके लिए भी बहुत ज्यादा British government used to make certain plans, certain you can say policies, so that they destroyed the industrial sector completely. India के industrial sector को completely destroy कर दिया गया। Okay, then colonial exploitation of the international trade। जैसा कि मैंने कहा कि इंडस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड का काफी कुछ रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, है ना, यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो बहुत उसके प्रोडक्ट फॉरेन में डिमांड में थे, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, है ना। उसको प्रिविलेज नहीं दी गई, उसको सपोर्ट नहीं दिया गया और उसके प्रोडक्ट कैसे वो डिस्ट्रॉय हो गए? क्योंकि इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज वे इम्पोज्ड ऑन सच प्रोडक्ट। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था, कॉटेज प्रोडक्ट था, स्मॉल इंडस्ट्री सॉरी प्रोडक्ट था, उस पर इतना ज्यादा हैवी ड्यूटीज चार्ज की गई जिससे कि वो एक्सपोर्ट करने में इतनी ज्यादा कॉस्टली हो गई कि फॉरेन में उसकी डिमांड काफी कम हो गई। प्लस इंडिया में भी उनकी डिमांड क्यों कम हो गई? क्योंकि इंडिया में क्या होता था कि इन द इंडियन मार्केट दे यूज्ड टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन के गुड्स को इंपोर्ट करते थे एट ड्यूटी फ्री, ओके, विदाउट एनी टैक्स। तो एट विदाउट टैक्स और ड्यूटी फ्री आप कहीं से का प्रोडक्ट ला रहे हो और यहाँ के प्रोडक्ट में आप बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगा रहे हो। ड्यूटीज मीन्स टैक्स,
तो ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ के गुड्स सस्ते पड़ रहे थे यहाँ के लोगों को भी। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड थी इंडिया के प्रोडक्ट की वो भी खत्म हो गई, और इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन मार्केट में भी खत्म हो गई, क्योंकि उन लोगों ने उस पर इतनी ज्यादा हाई ड्यूटीज लगा दी थी कि फॉरेन में लोग उसको अफोर्ड नहीं कर रहे थे। ओके, एंड दिस वाज अबाउट द एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट जो सिनेरियो था इट वाज टोटली एक्सप्लॉइटेड, इट वाज डिस्ट्रॉयड। इंपोर्ट में क्या हो रहा था कि ब्रिटेन से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे थे इंडिया में। इंडिया के प्रोडक्ट्स तो बाहर जा नहीं रहे थे, बिक नहीं रहे थे, लेकिन इंपोर्ट ब्रिटेन से यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, हैवी कैपिटल गुड्स जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पे आ रहे थे ब्रिटेन से। यहाँ का जो रॉ मटेरियल था वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन से ड्यूटी फ्री, है ना, एट वेरी यू कैन से लो प्राइस इट वाज ट्रांसफर टू ब्रिटिश मार्केट सो दैट दे कैन डेवलप देयर ओन इंडस्ट्री। अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते में लेके जाते थे। ओके, दे यूज टू यूज इंडिया रॉ मटेरियल फॉर देयर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और वहां से फिनिश गुड्स इंडिया में लेकर आते थे एट यू कैन से बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं रखते थे, जिससे कि इंडिया में वो आराम से डिमांड में रहे, है ना। और इंडिया के जो बाकी जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे जो भी थे उन पे इतनी हाई ड्यूटीज थी कि वो फॉरेन में डिमांड नहीं होते थे। तो इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में भी नहीं थी, फॉरेन में भी नहीं थी, इसीलिए इंडियन इंडस्ट्री डाइड आउट टोटली, इट वाज शैटर्ड। Now we come to the next topic, that is the features of Indian economy on the eve of independence. Indian economy का क्या features था, है ना, उस समय क्या हालत थी इंडियन इकोनॉमी की। बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले इट वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, स्टैग्नेंट मतलब समथिंग विच इज स्टिल, विच इज नॉट मूविंग। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हो रहा था वो इतना कम था कि ऑलमोस्ट इट वाज स्टैग्नेंट, इट वाज एज इफ इट वाज नॉट ग्रोइंग, इंडिया वाज नॉट एट ऑल ग्रोइंग, इट वाज स्टिल, ठीक है, रुकी हुई थी, इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट इज बैकवर्ड इकोनॉमी। ऑब्वियसली बैकवर्ड थी इंडिया में, बैकवर्डनेस थी क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, एवरीथिंग वाज एक्सप्लॉइटेड। तो इंडिया इन जनरल वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी। यहाँ पे लोगों के पास न तो जॉब था न बेसिक फैसिलिटीज थी। ओके, तो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जमींदारी सिस्टम चल रही थी, यहाँ पे लैंड रेवेन्यूज बहुत ज्यादा हाई थे, और ऊपर से कोई फैसिलिटीज नहीं थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कोई भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं था, कोई फैसिलिटीज नहीं था। दैट इज वाई द प्रोडक्टिविटी वाज वेरी वेरी लो। ओके, यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम और मतलब मिक्स इकोनॉमी सिस्टम चल रहा था, लेकिन फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। फ्यूडल सिस्टम मतलब जहाँ पे लैंडलॉर्ड होते हैं, ये वाला जो सिस्टम होता है, तो लैंडलॉर्ड वाले सिस्टम में आप टिलर को कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग देम एनी फैसिलिटी, एनी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो हाउ विल दे इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। तो उनका प्रोडक्टिविटी वैसे ही लो हो जाता था। तो एग्रीकल्चर वाज अ वेरी बैकवर्ड एरिया। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि इंडस्ट्री वाज आल्सो सफरिंग। जो भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इंडिया में हुआ था इंडस्ट्री में, वो सारी चीजों को इन लोगों ने शैटर कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, ओके, फॉर देयर ओन पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल एजेंडा, पर्सनल गेन। नेक्स्ट इज रैम्पेंट पॉवर्टी। ऑब्वियसली जब इकोनॉमी इतनी बैकवर्ड है, द होल इकोनॉमी under the exploitation of the British rule, then obviously poverty was a you can say everywhere to be seen. ठीक है, mostly people were poor. They did not have the basic facility of shelter, clothing, okay, so and food. Employment भी नहीं था ज़्यादा, unemployment का बहुत ज़्यादा problem चल रहा था. So poverty was everywhere to be seen in India. And next is poor infrastructure. British government was not doing anything for India. They were not doing, making any investments or making any infrastructural development in India. ठीक है, तो इंडिया में रोड्स वगैरह कनेक्टिविटी भी बहुत पुअर थी। जो भी थोड़ी बहुत थी वो उनके अपने बेनिफिट के लिए, अपने पर्पस के लिए उन्होंने बनाई थी, नॉट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए था, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो सब बहुत लो था। नेक्स्ट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट होना अच्छी बात नहीं है ना। इम्पोर्ट मीन्स यू आर गिविंग फॉरेन एक्सचेंज टू द अदर कंट्री, फ्रॉम योर कंट्री टू द अदर कंट्री। तो इम्पोर्ट होना अच्छा नहीं है, एक्सपोर्ट होना अच्छा है। एक्सपोर्ट मीन्स सेल, है ना, इम्पोर्ट मीन्स परचेज। So you are purchasing goods but you are not selling them.
आप इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर नहीं बेच रहे हो, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, उन पे टैक्स लगा रहे हो, बट यू आर सेलिंग, you are buying foreign products, you are buying goods from Britain. That means you are sending out, you are transferring your foreign reserve to that country, है ना. तो import पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस था मतलब आपने फॉरेन इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसका बैलेंस भी बिगाड़ दिया था, प्लस आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी खाली करना शुरू कर दिया था. नेक्स्ट इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन मतलब when people are shifting from villages to towns, to cities, metro cities. तो यहाँ पे क्या था, at the time of British rule, okay, on the eve of independence. eve of independence का मतलब होता है इंडिपेंडेंस के जिस दिन इंडिपेंडेंस मिली उसके पहले जो शाम थी उसको eve of independence बोलते हैं ना. तो उस दिन क्या हालात थे इंडिया के, what was the situation of India? तो at that time इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत लिमिटेड था, मतलब मोस्टली पीपल वर लिविंग इन द रूरल एरियाज. ओके, अर्बन एरियाज में बहुत कम पॉपुलेशन थी, पीपल वर नॉट शिफ्टिंग टू अर्बन एरियाज, एंड बिकॉज डेवलपमेंट ही नहीं था, नॉलेज नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, दे हैड नो आइडिया. नेक्स्ट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. सेमी फ्यूडल जैसा मैंने बताया कि इट वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना. लैंडलॉर्ड का सिस्टम भी था, कैपिटलिज्म का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फीचर्स था. तो इंडिया वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन प्रोडक्टिविटी लो थी क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में प्रोडक्टिविटी लो ही होती है. एंड द लास्ट वन इज कॉलोनियल इकोनॉमी. कॉलोनी मीन्स जैसा मैंने आपको भी बताया था कि कॉलोनी मीन्स जब आप किसी कंट्री को अपने पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट करो, है ना. यू आर यूजिंग देम फॉर योर ओन बेनिफिट, you are not doing anything for the growth and development of that area or that economy. You are only using all the resources of that economy for your own purpose, for the growth and development of your country. Then it is known as colony. Okay, so colonial economy. India was a colonial economy. वो British control में थी. British government was controlling India completely, its resources and everything. So they were exploiting India to the fullest for the growth and development of their country, for the growth and development of Britain. ठीक है, तो ये सारा हमारा फीचर्स था इंडियन इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके पहले के इंडिया के ये हालात थे. दिस वाज द सिचुएशन इन इंडिया. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. Okay students, so now we move on to the third topic, that is the agricultural sector and the industrial sectors, both the sectors on the eve of independence. ठीक है, on the eve of independence, जिस दिन हम लोग को आज़ादी मिली है, देश को आज़ादी मिली है, उस दिन के just one day before, what was the condition of agriculture and what was the condition of industry in India? Okay, so first let's discuss agricultural sector on the eve of independence. Agricultural sector का क्या हाल था? How was it exploited? How far it was exploited? ठीक है, so first one is low production and low productivity. Production and productivity. Production मतलब production की you can say output, है ना. जो output थी वो बहुत कम थी, और productivity, the efficiency level, the productivity capacity was also very low. इसका कारण क्या था? जो हमारे tillers थे, the small farmers or the poor you can say farmers who were actually cultivators, so they were not given enough either the facility or the incentive to work harder. ना तो उनको कोई फैसिलिटी दी गई थी कि ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी बढ़े, ना उनको कोई इंसेंटिव दिया जाता था, बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यूज दिया जाता था, है ना. तो उनके अंदर में देयर वाज नो इंसेंटिव, देयर वाज नो मोटिवेशन टू वर्क हार्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द soil. Okay, so they were already tortured, they were already exploited badly, so they could not work any you can say harder to increase the productive capacity of the soil or to increase the production, because there was no facility given by the Britishers, but there was too much exploitation from the landlords as well as the British government. And then high degree of uncertainty, as you know, मैं बार बार बोल रही हूँ कि फैसिलिटीज नहीं थी. फैसिलिटीज से मेरा मतलब है एग्रीकल्चर में जिस भी तरह के सपोर्ट की जरूरत है, लाइक
If you need irrigation facility, you need proper markets, you need proper system. So these were not developed, है ना? Irrigation का तो ये हाल था, it was totally dependent on rainfall. The crop was totally dependent on rainfall, and rainfall is always uncertain. That is why the productivity was also uncertain. Okay. Next is dominance of subsistence farming. Subsistence मतलब क्या होता है? For self consumption. Subsistence farming मतलब सिर्फ अपने लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना? You are doing it only for your family. So dominance of subsistence farming मतलब क्या है कि जो इंडिया में एग्रीकल्चरल सिनेरियो था, द एग्रीकल्चरल सिनेरियो इन इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल वाज बेसिकली नॉट फॉर the production was only for your own self consumption. Okay, it was limited to that. Dominance उसी का था. Dominance मतलब उसी की अधिकतम you were seeing mostly it is the case. ठीक है, सब जगह यही हो रहा था. सारे जो farmers थे, they were mostly producing for their families, for their own consumption. They were not doing it for commercial purpose. They were not doing it for सेलिंग पर्पज. ठीक है, क्योंकि उतना प्रोडक्टिविटी था ही नहीं, तो जो भी थोड़ा बहुत था दे यूज्ड टू कंज्यूम इट, है ना. नेक्स्ट इज गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ लैंड एंड टिलर्स. जब आप खुद लैंड के ओनर होते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होता है टू वर्क हार्डर, है ना, टू प्रोड्यूस मोर. बट हियर द केस वाज द लैंड ओनर्स वर डिफरेंट एंड द लैंड टिलर्स वर डिफरेंट. लैंड के जो ओनर्स थे वो अलग लोग थे, लैंड पे जो काम करने वाले थे पुअर फार्मर्स, दे वर डिफरेंट. So they were exploited. They were, you can say, irrational amount of revenues were extracted. है ना, उनसे बहुत ज़्यादा revenues extract किया जाता था, जिसका कोई, you cannot say that there was any logic behind it. They were only exploited, okay, by charging high revenue. So there was very big gulf between the owners of the land and the tillers. Tillers were very poor and they were made even more poor by extraction of high amount of land revenue. Okay, and the owners became richer because they exploited the poor farmers and they took whatever money they wanted, whatever rate they wanted, they charged. Okay, जो land का जो you can say rent होता है वो भी they used to charge very high. Okay, then small fragmented holdings. Small fragmented holdings मतलब अगर आपके लैंड की साइज बड़ी है, इफ द लैंड साइज बिग, ओके, फार्म साइज इज बिग, द प्रोडक्शन विल ऑटोमेटिकली बी मोर एफिशिएंट, इट विल इंक्रीज, है ना. लेकिन जो स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स के, जो पुअर फार्मर्स के छोटे छोटे लैंड है, उनकी प्रोडक्टिविटी तो वैसे भी लो होगी. और जनरली इंडिया में या तो जो बिग लैंड लॉट्स थे या फिर जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स थे, तो उससे प्रोडक्टिविटी वैसे भी लो ही थी. नेक्स्ट इज land revenue का system. Okay, this system was brought by the British. Okay, land revenue system, the जमींदारी system, जहाँ पे some rich people were made the landlords of the land, while the poor farmers were made the tillers. Okay, next, forced commercialization. This is very very important. This point is very important. Forced commercialization मतलब एग्रीकल्चर इंडिया में जो था ना, पहले subsistence level पे था. Before the British rule, it was proper. There was no problem in the agriculture sector. वो बहुत ज़्यादा system था, systematically developed था, है ना. It was very advanced. लेकिन जब हम British rule की बात करें, वहाँ पे agriculture को exploit किया गया था, ठीक है. But what happened from self-consumption of a subsistence farming, it was gradually shifted to commercialization. Commercialization of agriculture मतलब क्या होता है कि जो पहले जो grains, food grains का production होता था, है ना, for consumption purpose, for sale, लेकिन अब क्या हो रहा है, they were forced, the farmers were forced to produce commercial crops more. ठीक है, commercial crops किसके लिए? To send them as raw material to the British industry. ठीक है, British industry में ब्रिटेन में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है. तो दे यूज टू यूज आवर रॉ मटेरियल एट चीप कॉस्ट टू प्रोड्यूस देयर गुड्स एंड सेल देम बैक टू इंडिया एज फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है. तो इंडिगो और ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि उनको यूज में आते थे, दे यूज टू फोर्स द फार्मर्स टू प्रोड्यूस सच क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स.
okay, and not produce the food grains. तो अब क्या होता था कि farmers जो थे they had to produce the commercial crops and food grains which they could have produced, but now they cannot produce, so they had to buy it from outside, from the market. So उनके पास पैसा रहता नहीं था, they were poor farmers. So in order to buy food grains for themselves, they used to take debt, you know, they used to take credit from people. So always they used to be under huge burden of debt. ठीक है, हमेशा उधार लेना पड़ता था और उधार के बर्डन में वो रहते थे, क्योंकि उनको जो प्रोडक्शन वो कर सकते थे अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो अलाउ नहीं किया जा रहा था. They were forced to produce what? They were forced to produce commercial crops like indigo. ठीक है, so this was the scenario of agricultural sector. एक बार फिर से देखते हैं हम क्या क्या चीजें थी. सबसे पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट दोनों ही कम था. हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल एंड टू मच डिपेंडेंस ऑफ रेनफॉल. उसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग का डोमिनेंस था, लेकिन बाद में वी सॉ दैट इट वाज शिफ्टिंग टू कमर्शियलाइजेशन, है ना. फार्मर्स वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप. देन गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स. ओनर और टिलर्स सेम नहीं थे. ओनर्स वर वेरी बिग लैंडलॉर्ड्स, okay, rich landlords, and tillers were poor farmers. Small and fragmented holdings were usually seen with the small farmers. उनके small fragmented holding, fragments मतलब छोटे टुकड़ों में. तो fragmented holdings में क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होता है. ठीक है, so and then land revenue system was started, commercialization was started. Okay, so these were the features of Indian agriculture on the eve of independence. Now we come to the last part, that is the industrial sector. How was the condition of industrial sector on the eve of independence? The first thing is discriminatory tariff policy. Tariff means tax. Tariff means duty, tax. Okay. So I am not talking about those duties and responsibilities. Not that duty. I am talking about tax and उसकी जो tax के जो export and import में जो tax लगता है उसको हम लोग duties बोलते हैं. ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ मतलब भेदभाव वाली पॉलिसी चल रही थी. ओके, डिस्क्रिमिनेटरी मींस टू मेक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, है ना. किस चीज में भेदभाव हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन देयर ओन प्रोडक्ट्स एंड आवर प्रोडक्ट्स. ओके, व्हेन आवर प्रोडक्ट्स वर बीइंग सोल्ड, जब एक्सपोर्ट की बारी आती थी हमारे प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, तो उस पर हैवी ड्यूटी लगा देते थे, है ना. लेकिन जब रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट की बात आती थी तो उसमें ड्यूटी फ्री कर देते थे, जिससे कि फ्री में वो लोग अपने पास लेके जाते थे, उससे अपने प्रोडक्शन करते थे. फिर अपना जो इम्पोर्ट होता था इंडिया में वो भी ड्यूटी फ्री कर देते थे, जिससे कि वो यहाँ पे चीप रहे, सो दैट द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाइज देयर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट, है ना. हमारे अपनी प्रोडक्शन जो थी उसको नहीं खरीद के हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट किया हुआ ब्रिटिश प्रोडक्ट वो खरीदते थे, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था, क्योंकि हमारा जो अपना प्रोडक्शन था उसपे हैवी ड्यूटीज रहती थी, तो दे बिकेम कॉस्टली. ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसीज चल रही थी. डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट. प्रिंसली कोर्ट जो होता है ना, मतलब कि जो राजा महाराजा इस तरह के जो लोग होते थे उस जमाने में, है ना, रिच पीपल, दे यूज्ड टू पेट्रोनाइज द क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो क्राफ्ट थे, इंडिया के जो यूनिक स्टाइल्स थी, उनको वो पेट्रोनाइज करते थे. पेट्रोनाइज करना मतलब एक तरह से उसको बढ़ावा देना, है ना. दे यूज्ड टू प्रमोट इट. लेकिन धीरे धीरे करके प्रिंसली स्टेट्स को भी खत्म कर दिया गया. दे वर रिमूव्ड. ओके, देयर टाइटल्स वर टेकन अवे. सो व्हेन द प्रिंसली स्टेट्स वर रिमूव्ड, so what happened, these industries which were patronized by these princely states, वो इंडस्ट्रीज भी खत्म होने लगी. ओके, क्योंकि उनको प्रमोशन, उनकी जो सपोर्ट था वो चला गया, है ना. कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट. मशीन मेड प्रोडक्ट, जब ब्रिटिश यू कैन से ब्रिटेन से जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आते थे, द प्रोडक्ट्स व्हिच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, दे वर मशीन मेड प्रोडक्ट. और इंडिया में जो प्रोडक्ट्स थे वो हैंडीक्राफ्ट थे, दे वर हैंडमेड. ओके, तो हैंडमेड प्रोडक्ट कुड नॉट withstand the competition from the machine made product. Obviously machine made product जो होंगे उनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी, ज्यादा फाइन होंगे, है ना, sophisticated होंगे, whereas handmade products were rough, so they could not stand the competition with machine made product, and that is why their market shrinked. उसकी डिमांड कम हो गई.
न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड इसीलिए मेनली हुआ बिकॉज द जनरेशन ऑफ दैट टाइम, इंडियन पॉपुलेशन एट दैट टाइम, many of them started following the British culture, है ना, बहुत सारे लोग ब्रिटिश कल्चर से इन्फ्लुएंस होके उनकी तरह से लाइफस्टाइल को चेंज करने लगे. सो देयर डिमांड पैटर्न आल्सो चेंज. ओके, दे प्रेफर्ड टू लिव देयर लाइफ as a British people were doing. So they preferred their products over Indian products. Okay, then introduction of railways. This was one indirect, you can say blessing, or you can say blessing in disguise. इसको बोलते हैं. So introduction of railways were done by the British. Okay, to serve their purpose, to make the product, to help the British government to supply their products to different parts of India, so that everywhere their product is demanded and supplied. लेकिन how it helps? Indirectly, this railway network was developed by British for themselves, but it indirectly helped India. Okay, एक infrastructural development हुआ, इंडिया में कनेक्टिविटी बढ़ी, इंडिया में लोग इधर से उधर जाने आने लगे, है ना. तो ये एक तरह से बेनिफिशियल हुआ इंडिया के लिए. Although it was done for their own benefit, वो अपने लिए किए थे, लेकिन इंडिया वालों को भी इससे सहूलियत मिली. ओके, देन लास्टली ब्लीक नोशनल ग्रोथ. आपको पता ही है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री बस सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय. सिस्टमैटिकली मतलब सोच समझ के प्लान करके उसको डिस्ट्रॉय किया गया है ना, तरह तरह की पॉलिसीज बना के, तरह तरह की टैरिफ पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लगा के our handicraft industry, our cottage industry, our small scale industries were destroyed. जो भी हमारे पॉजिटिव चीजें थी सबको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया है ना, स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रॉयड. बट आफ्टर द you can say just before the British left India, that means just before the independence, there were few developments in the हेवी इंडस्ट्रीज, है ना. कुछ एक दो हेवी इंडस्ट्रीज हम लोगों को देखने को मिलती, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इस तरह की. लेकिन अभी वो बहुत, यू कैन से देयर वर वेरी फ्यू इन नंबर्स एंड मोस्टली हेवी इंडस्ट्रीज वर मिसिंग फ्रॉम इंडिया. ठीक है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी इंडिया में. एक दो रेयर केसेस देखने को मिले जो स्टार्ट हुए थे, दे वर जस्ट इन द बिगिनिंग स्टेज. ओके, कॉटन इंडस्ट्री वाज डिस्ट्रॉयड, स्मॉल इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड. तो ये सिनेरियो चल रहा था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का. द ग्रोथ वाज ब्लीक. ब्लीक मतलब बस नाम का ग्रोथ था, नोशनल, है ना, जस्ट फॉर द नेम सेक. सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, सो वंस अगेन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, भेदभाव वाली पॉलिसीज अप्लाई गई थी टैक्स स्ट्रक्चर की. ओके, which suited or which helped the British you can say industry, which helped the British to earn more and which strained the demand for Indian products in the both in the domestic market as well as in the international market. Disappearance of princely courts were removed, the titles were taken, so the products they patronized, जो products वो patronize करते थे, promote करते थे, वो products भी अब पेट्रोनाइज करने वाला कोई नहीं था. So their demand was also shrink. Okay, their demand shrink. Competition from machine made products. Machine made products came from Britain and India. In India there were handicrafts. Okay, handmade products. So they could not compete with the machine made products. इसीलिए उनकी डिमांड कम हो गई थी. New patterns of demand developed because of the heavy influence of British lifestyle on our culture. हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिला, इसलिए डिमांड के पैटर्न भी चेंज होने लगे, है ना. जो लोग पहले इंडियन गुड्स को प्रेफर करते थे, अब वो फॉरेन गुड्स को प्रेफर करने लगे. रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड व्हिच वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बट रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हाई? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू increase the demand for British goods in India, है ना. And lastly, we have seen that our industries, okay, the handicraft industries and the cotton industries, our industries were strategically and systematically destroyed, okay, to help the growth and development of British industry. But
by the time the British left India, there were few developments in the industrial sector like iron and steel industries, Tata Iron and Steel Industries, and also small, on a very small note it started. Small note, but I'm not saying they were small industries. They were heavy industries, but they were very few in numbers. Okay? Only handful of industries were developed. On the eve of independence, this was the scenario of industry in India. Okay? So we end this session for today, and we'll continue in the same chapter in our next session. Okay? If you feel, if you have any doubt, you can contact me. Please go through the notes and the chapter and read it like a story so that you find interest. Okay? Don't read it as a course material. Just read it as if you are reading a story. Then you will find interest, and it will enhance your knowledge also about